जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामदितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक पूर्णम भारती गुरु। Прежде всего я предлагаю мое почтение Ниттилила Правиштау Вишнупад Парамахамса Статарашат Шри Шримас Шрили Бхактивиданти Нарайни Госвами Махараджу. Предлагаю поклоны его стопам и молюсь о беспричинной милости. Потом предлагаю поклоны нашей Рупануга Гуру Варги, Шести Госвами и Расикачари, Шрили Вишванатхи Чакраварти Такуру. Поклоны им, и я молюсь об их беспричинной милости. Я предлагаю мое почтение Шрипаду Примананде Прабху, молюсь также о его беспричинной милости и предлагаю пранаму всем собравшимся преданным. Шрипад Бхактивиданта Ашр Махарадж пришел. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам Махапурану, 3-я песнь, 30 глава. Капила Муни дает наставление своей маме Девахути. Он говорит о Бхагават-дхарме. Люди делают сакам баджан. То есть те, кто делает баджан с желаниями, наверное, с материальными желаниями, каково будет их положение. А есть люди, которые совершают ниргун баджа, то есть у них нет материальных желаний. Чего достигнут они? Пожалуйста, объясни разницу между двумя этими видами баджана. Это мама говорит Капиле. Люди поклоняются полубогам, поклоняются предкам, совершают церемонию Шрадхи. Они следуют путем Варнашрама-дхармы. И эти люди, они достигают планеты Луны, планеты предков. पितृ लोगों को जो इष्ट मान करके उनको पूजा करते हैं, они поклоняются своим предкам, поэтому они отправляются на Питрилоку. Говорится, что это Луна. Питрилока — это вроде как Луна. Переводят, по крайней мере, так.
यदा च इह चंद्रसज्जायां शेते अनंतासनो हरिः तदा लोकालयं जानति तयेते गृहमेधिनाम्। और जब भगवान हरि अनंत शयन में अनंत सज्जा पर शयन करते हैं तो उसी समय एक प्रलय होती है। Во время разрушения мира, во время пролая, ये पितृलोक भी उसी समय नष्ट हो जाती है। даже планета Петрилока тоже वहाँ से उन लोग का भी विनाश हो जाता है। разрушается. विनाश हो जाते हैं मतलब Разрушается, значит, लयम जानती। वो चंद्र लोग जो पितृलोक है तो विनाश हो जाता है क्योंकि भूलोक के ऊपर भूवलोक है। चंद्र लोक है जहाँ पर पितृ पुरुष लोग वास करते हैं। поскольку Луна разрушается во время частичного разрушения Вселенной. और त एते गृह में धीनम, तो उसी समय ये लोग सब उसी प्रलय काल के बाद पतन हो जाते हैं। पतन हो जाते हैं मतलब फिर सृष्टि करने के समय इंतजार करते во время творения फिर जन्म लेना पड़ता है। और भगवान की अनंत शयन में जब आंख बंद करते हैं तब कहते प्रलय हो जाती है। Когда Бхагаван закрывает глаза, происходит частичное разрушение. निसंगान्यस्त कर्मणः प्रसन्ता शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरतः निर्ममा निरहंकृता स्वधर्म आप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम् परावरेशं प्रकृति अस्योत्यस्पत्यतात् भावनम्। कहते हैं ये तो जो लोग सकाम कर्म करते हैं, पितृ पुरुष लोगों के लिए कर्म करते हैं, ये लोग पितृलोक में जाते हैं। और जब इस अनंत शयन वाले विष्णु का प्रलय मतलब एक ब्रह्मांड с тем уровнем поклонения, который делают люди, они отправляются на определенные виды планет. Но даже эти планеты, они будут разрушены. В зависимости от своей кармы они принимают рождение даже в разных вселенных или на разных планетах. Те, у кого есть разум, те, кто желает исполнить свои желания, те, кто желает обрести богатство, в зависимости от того, к какому варне или ашраму они относятся, для них есть разные предписания. और कर्म तो करते हैं वर्णाश्रम के अनुसार, लेकिन भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं в соответствии और अनासक्त होते со своим ашрамом. они предлагают ममता शून्य होते हैं, निर्ममा निरहंकृता और कर्तृत्व अभिमान को त्याग Бхагавану плоды своего труда. कर्म कब नष्ट हो। तो कहते हैं कि भागवत में कर्तृत्व अभिमान। Кто-то может задать вопрос, когда карма будет полностью разрушена. Если мы думаем, что мы те, кто делает что-то, то карма продолжает оставаться с нами. Но если мы занимаемся, мы можем совершать даже практиковать анги преданного служения. Но если у нас есть ложное эго, если мы думаем, что это мы делаем, и ожидаем плоды, то это принесет, наверное, плоды кармы.
तो निरहंकृता अहंकार शून्य होकर के जो कर्म Прабхупад करेंगे, говорил, что если мы делаем, निवृत्ति धर्म значит, ангел преданного служения निरहंकृता с сложным эго или с желанием получить आपतेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा, то это как карма. ऐसा अपना आत्म धर्म पालन करके उनका चित्त को परिशुद्ध करते, सत्व गुण के द्वारा कर्म करके, सात्विक कर्म करके, तब सूर्य द्वारेण ते जानती पुरुषं Сатвагуна, она विश्वतो очищает मुखम। ум. कहते सूर्य रश्मि द्वारा मतलब कि जहाँ से आलोक की रेखा आती है, सेल्फ एफल्जेंस, तो ये लोग पुरुष अवतार को प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्म जो करने वाले, जो कर्म करके फल को भगवान को अर्पण कर देते हैं, Те, кто совершает нишкарма карму, то есть отдают плоды своего труда Кришне без привязанности, महाविष्णु का गति को प्राप्त होते हैं। я не знаю, если я правильно понял, получают мужские тела, что ли. उपादान प्रकृति के उपादान और निमित्त कारण के कारण जो है, Трудно сегодня идет перевод, что परावरेशम Понятно, प्रकृतिं तस्य उत्पत्ति अंत भावनम, प्रकृति का उत्पत्ति और प्रलय, ये दोनों क्रिया की जो कारण है, उपादान और निमित्त Причина. कारण प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु उनका गति को प्राप्त करते हैं। द्विपरार्ध अवसाने जह प्रलयं ब्रह्मणस्तुते, तावत अध्यासते लोकं परस्य परचिंतकः। और एक बात कहते, द्विपरार्ध अवसाने, ब्रह्मा जी का आयुष्य है द्विपरार्ध। жизнь जो Господа Брамы कैलकुलेशन हुआ है पूरा लाइफ टाइम, उनका लाइफ टाइम को कहते हैं Его жизнь, द्विपरार्ध आयुष्य। हमारे कैलकुलेशन भूमंडल द्विपरार्ध अवसान मतलब ब्रह्मा जी का сколько-то лет. Он сколько-то сказал, я не понял, что он сказал, но очень длинная жизнь у него. तो जहाँ प्रलय ब्रह्मणस्तु ते, ब्रह्मा की अवसान होने से एक ब्रह्मांड प्रलय हो जाती है। होने के बाद Когда तावत Брахма умирает, अध्यासते लोकं परस्य мир уничтожается. परिचिंतकः। और कितने लोग होते हैं जो कि परिचिंतक, जो ब्रह्मा जी को उसमें क्लियर करते हुए विश्वनाथ चक्र भागवत के जितने टीकाकार है, केवल मात्र रसिक आचार्य वर्ज महामोपाध्याय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारी बात को पूरा क्लियर खुल करके बताया। सिद्धार्थ स्वामी पाद चाहे प्रथम टीकाकार है भागवत की, लेकिन सिद्धार्थ स्वामी पाद ने कभी कभी टीका में ऐसे हुआ है तो बुलबुलिया में आदमी फंस जाते हैं, साधक पाठक अनुशीलन करने वाले। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाप्रभु की अनुकंपा से और महाप्रभु को आदेश से उन्होंने जो बनाया तो उसमें पूरा क्लियर है। उसके कारण कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान की गुण अवतार, सत्व रज तम, सत्व गुण के अवतार है क्षीरोदकशाही विष्णु। Он сказал, что Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур что-то объясняет очень ясно, что-то там комментирует, непонятно, что он комментирует, не было перевода. Потом он говорит, что Брамаджи, он представитель гуны Раджаса, Вишну, он отвечает за благость, а Шива за тамагуну, за разрушение мира. Это три божества, управляющие этим миром. Брахма, он медитирует на свое божество. Кто его божество? Кому он поклоняется?
सत्य लोक में उनके पास जाकर के रहते हैं। Господь और Брахма जब द्विपरार्ध अवसान है, ब्रह्मा जब नष्ट हो जाते हैं, खुद उनके साथ सब जाके महाविष्णु के अंदर घुस जाते हैं। After duration of Brahmaji, when it is destroyed, then they get destroyed as well. क्षमाम्भो, उसके बाद ये श्लोक में ये बता दें, Я так понял, что после того, как жизнь Брахмы пройдет, он умирает и отправляется к Вишну. अनैन्द्रियार्थं भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहिरिषु अव्याकृतं विशति जरिगुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू। जिस समय ब्रह्मा जी В это время, नष्ट हो जाते हैं, यानी प्राकृतिक प्रलय когда होती все है, разрушается, Destroyed. Brahmaji इसलिए материальная प्रकृति का природа दो नाम है। разрушается. जोग माया की, एक होता है प्रकृति और एक होता है प्रधान। Pradhan. दो क्रिया की दो नाम है, Procreation is two different. प्रकृति और प्रधान। प्रकृति मतलब प्रक्रियते इति प्रकृष्ट रूपेण क्रियते नामी प्रकृति। Created. महाविष्णु की इच्छा में दुर्गा देवी से जब महतत्व सृष्टि होती है, So what is Mahavishnu? तो आकाश Благодаря से желанию जब Махавишну स्पर्श होने के बाद फिर वायु होती है, फिर आकाश शून्य से शब्द से आकाश बनते हैं, आकाश से из 5 स्पर्श होके материальных वायु बनते элементов हैं, वायु से फिर रूप होके पानी बनते, अग्नि बनते हैं, अग्नि से रस होके अनल जल बनते हैं, जल से गंध युक्त होकर के पृथ्वी बन जाती है। ऐसे पंच तत्व बनता है। So the five tattvas comes from beginning. पंच महाभूत, पंच तत्व नहीं, पंच महाभूत। ऐसे 25 तत्व की ऐसे ऐसे непонятно. Я не знаю, что переводить. Creation. यानी महातत्व में जब पहले अहंकार सृष्टि होता है, For single. वो माया की 3 गुण के द्वारा वो अहंकार 3 भाग हो जाती है। В सोответствии The ego becomes वैकारिक अहंकार, माया की जो सात्विक अहंकार के सात्विक के साथ समन्वित होने के बाद वो वैकारिक अहंकार से केवल सृष्टि होता है मन, so mind becomes सात्विक अहंकार से। so sat. राजस अहंकार से सृष्टि होता है पंच सूक्ष्म भूत, So five types of. और मतलब जिनका शास्त्रीय भाषा है पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श я так понял, из сатвагуны возникает ум, из раджаса возникают 5 чувств, 5 познающих чувств и 5 действующих чувств. गलत बोल दिया। तेजस अहंकार से सृष्टि होता है पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय। 5 как कर्मेंдрий и 5 гьянендрий, 5 познающих чувств, 5 работающих чувств. और बाक पानी पाद पाए उपस्थ, और तामसिक अहंकार से सृष्टि होती А है из тамаса, из тамагуны возникает पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म भूत। पंच महाभूत मतलब खिच возникает панча махабут. और पंच सूक्ष्म भूत मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध। You're getting all this smell. ये क्रम से И из тамагуны возникают 5, इसी насколько я понял, 5 объектов для наслаждения чувств. Запах, вкус и так далее. Ну, вроде так, он так сказал, по крайней мере. इसको वही बोलते हैं क्षमा। И во время पृथ्वी, अम्भो मतलब जल, अनल मतलब अम्भो मतलब जल, अनल मतलब अग्नि और वायु, ये सब कैसा होती है? इंद्रिय अर्थ। जब हवा होती है Yeah. वो प्राकृतिक प्रलय होने के समय In the time of destruction. तो गंध को उड़ा के ले जाते हैं मिट्टी से। वो गंध को उड़ा के लेने के बाद वही जल हो Away जाता है, from और जल से जब away from the earth. वो रस चला जाती है वही अग्नि बन जाता है, So take the rust. The time of destruction. और वही अग्नि से जब रूप चल जाता है वही वायु हो जाता है, Taking और away वायु से fire जब becomes air. स्पर्श चला जाता है वही आकाश बन जाता है, आकाश से शब्द Taking जाने away से वही the शून्य touch बन जाता है। becomes ether. во время разрушения все процессы как бы развиваются обратно. Во время творения из эфира там добавляется отдельное качество, к нему получается воздух, еще одно качество добавляется, появляется вода, еще одно качество добавляется, появляется огонь, и еще одно качество добавляется,
проявляется земля, а во время разрушения все происходит наоборот. От земли отделяется одно качество, получается вода, от воды отделяется одно качество, получается огонь. И от огня отделяется еще какое-то одно качество, получается воздух, и потом от воздуха уходит еще одно качество, получается только эфир. То есть все разрушается в обратном порядке, так же, как и строилось. Существует одна верховная душа, сверхдуша. भगवान परमात्मा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ब्रह्म तो बताया गया तदोपास्य तनुभा, भगवान की जो अंग कांति उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है उनके लिए उपनिषद में बताया गया अंगुष्ठ मात्र पुरुष, उनको कहा गया अंतर्यामी। विशेष करके पुरुष अवतार ही अंतर्यामी है परमात्मा, तीन पुरुष अवतार। ब्रह्म की कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई लीला पार्षद नहीं होते, और परमात्मा की स्वरूप होता है लेकिन पार्षद नहीं होते, लीला नहीं होता है। इसलिए कहते त्रिगुण आत्मा, यानी माया जगत की जो प्रथम पुरुष अवतार वो है उनकी परमात्मा। एक ब्रह्मांड का परमात्मा होते गर्भोदकसाई विष्णु, और तीसरा क्षीरोदकसाई विष्णु सबके परमात्मा है, सबके शरीर में, भूत में। इसलिए भगवान सर्वज्ञ हो जाते हैं, सबका अंतर्यामी हो जाते हैं। पूरा माइक जगत का परमात्मा होते प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कारणोदकसाई विष्णु, द्वितीय पुरुष अवतार एक ब्रह्मांड का परमात्मा होते हैं। इसलिए एक ब्रह्मांड को ब्रह्मा का स्थूल शरीर कहा गया। भागवत अमृत कणा में बड़े सुंदर रूप से विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं, एक ब्रह्मांड जो है उनका स्थूल, एक ब्रह्मांड का स्थूल शरीर है ब्रह्मांड, उनका अंतर्यामी होते गर्भोदकसाई विष्णु, उनका जीव होते ब्रह्मा, और सब भूत में ये शरीर होते ब्रह्मांड, और परमात्मा होते क्षीरोदकसाई विष्णु। Параматма — это Кширодакашая Вишну. जीवात्मा होते उनका जीव। इसलिए प्रथमम तो महत के всех विष्णु वे प्रथम पुरुष अवतार माया जगत की आत्मा परमात्मा अंतर्यामी। द्वितीयम अंड संस्थितम, ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला अपना पसीना में आधे जल भर करके जो सो जाते हैं अनंत शयन में, ये गर्भोदकसाई विष्णु एक ब्रह्मांड का अंतर्यामी है, प्रथम द्वितीय पुरुष अवतार। तृतीयम सर्वभूतस्थम, तीसरा है जो कि सब भूत में प्रवेश हुआ अंतर्याम के रूप में। द्वा सुपर्णा सौजा सखायम समानं दुर्ख्ये परिशस्व जाते तयो अन्यो पीपलम स्वादु अत्ति अन्यस्नन अन्यः अभिचाकसीति। तो कहते हैं कि जब ये पूरा प्राकृतिक प्रलय है कि एक ब्रह्मांड लीन हो जाता है, तो जितने ब्रह्मा को उपासना करते हुए सत्य लोक में वास करते ब्रह्मा के साथ ये त्रिगुण, ये जोगी लोग भी सब लोग जा करके महाविष्णु में त्रिगुणात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, यानी महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू एवं परेत्य भगवन्तम् अनुप्रविष्टा ये जोगिनं जितमरुन् मनसो विरागाम् तेनैव साकमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मा प्रधान अनुपयात्म्यगतं विभान अभिमानम्। तो देवभूति फिर पूछ रहे हैं कि जो जोगी लोग होते हैं उनका गति क्या होती है? Девахути спрашивает, какова конечная цель достижения йогов? И Капиладев отвечает ей: श्वास और प्राण को जीत जाते हैं,
ये Йоги, они जो контролируют चित्त дыхание. मरुत मनसो विरागा, और मन में विरक्त आ जाते हैं, वैराग्य होती है, विरक्त योगी। И благодаря этому контролю они развивают чувство отречения. ये शरीर को त्याग करने के बाद में भी И эти йоги, они ये पुराण पुरुष после того, как оставят это тело, सब जाके वही они отправляются महाविष्णु के अंग में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म Они इसमें растворяются साधु в теле जो Вишну, पांच प्रकार Маха की Вишну. मुक्ति है, Брахма же сказал, что есть 5 видов мукти. आता है साजुज्य मुक्ति, Одно мукти, первое, называется саюджия мукти. और वही साजुज्य मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। Саюджия мукти тоже бывает двух видов. उसको कहते हैं ब्रह्म साजुज्य और ईश्वर Одно साजुज्य называется व अंग Брахма साजुज्य। Саюджия, а другое Ишвара ब्रह्म Саюджия. साजुज्य प्राप्त करने वाले ब्रह्म की भगवान की अंग कांति में, यानी जो ब्रह्म किरण कणा में किरण में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाते मतलब सनातन गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और माधवाचार्य भी हमारे परंपरा के आचार्य बताए कि लीन हो जाते मतलब नहीं कि पूरा उसमें मिल जाते हैं, नहीं, वो किरण कणा एक कणा अपना स्वतंत्र अणु के रूप में अपना एक स्वरूप रहता ही है, वहाँ पर लीन नहीं होता है। कभी भी जीव चाहने से ब्रह्म में लीन हो नहीं सकता, लेकिन किरण में मिल जाता है। इसलिए उसी निकृष्ट गति को हमारे आचार्य वर्ग ने बताया आध्यात्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड, जो इसमें लीन हो जाते हैं। और दूसरे कहते हैं जो जोगी लोग परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं, भगवान परमात्मा को ध्यान करते हैं, जोगी लोग प्रकृति से परे होना चाहते हैं, ये लोग महाविष्णु के अंदर ही घुस जाते हैं, नारायण के अंग में प्रवेश नहीं करते। वो नारायण के स्वरूप होने पर भी समझना पड़ेगा महाविष्णु के अंदर ही। अथतं सर्वभूतानं हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भाविनी। फिर अथतं सर्वभूतानं हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भाविनी। कहते हैं भगवान की उपासक जितने प्रकार के Говорится, что тот, кто поклоняется Господу, वो धीरे धीरे उनका भी क्रम के अनुसार, साधक के अनुसार उनका जो गति भी होती है वो भी अलग अलग होती है। इसलिए जब कुछ करो в соответствии с тем, как он совершает свой баджан, приходит к разной цели. И Шрила Гурудев говорит в комментарии, Гурудев обычно говорил, и некоторые люди думают, что все достигнут одной цели, несмотря на то, какой вы делаете баджан. Но Шрила Гурудев, он сравнивал это с покупкой билета. Если вы купили билет в Москву, то вас не перевезут в Лос-Анджелес. В зависимости от того, на какой самолет вы сели, то есть в соответствии с тому, какому пути преданности вы следуете, вы получите соответствующий результат в соответствии с вашим умонастроением. Вы получите результат. उसके कारण सबसे ऊंचा गति है श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भाविनी। И высшая цель, которую вы можете достичь, भगवान की जो प्रेम लक्षण युक्त это भक्ति योगों की शरण ब्रज, आपका शरण, высшая према, она क्योंकि जितना गति है находится во Врадже. केवल एकमात्र प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूर्णतम रूप में प्राप्त होती है, दूसरा गति में प्राप्त नहीं होता।
इसलिए माध्वाचार्य की Высшая цель — это обрести прему к Господу во враджи. भक्तिरेवेनं नयति भक्तिरेवेनं दर्शयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही एव शब्द में इसके कारण वही है कि न ज्ञानम न कर्मम न सांख्य योगम कुछ भी भगवान के पास ले नहीं सकते, केवल भक्ति एव एनम नयति। एनम मतलब भगवंतम, एनम पुल्लिंगवाचक शब्द है। जहाँ Только преданное служение может нас привести к Господу. Ни карма, ни гьяна, никакие другие процессы. पुल्लिंगवाचक शब्द होने के कारण पता लगता है ये भगवान के पास भक्ति ही लेती है। भक्ति Только bhakti может привести к Господу. एनम दर्शयति, भक्ति ही केवल उनको दर्शन कराती है। भक्ति वश पुरुष, क्योंकि भगवान भक्ति के वश होते हैं। भक्ति एवं हुई, इसलिए जितने साधन है सबसे श्रेष्ठ है भजन। Только с помощью бхакти по-настоящему можно контролировать чувства. शुद्ध भक्ति का शरण लेने के लिए कपिल देव जी माता जी को उपदेश करते हुए कहते हे माता हे भागिनी, Поэтому आप Капила Дев советует своей маме принять прибежище у процесса бхакти, предаться Господу и заниматься этим. श्रवण द्वारा ही जिनका प्रधान अंग है उसी भक्ति का आप आश्रय लीजिए और जहाँ पर गति उत्तम होती है। फिर बताएंगे बहुत सुंदर सुंदर बात। Ох, и завтра мы продолжим. Сегодня переводчик у нас не оригинальный. Их два брата-близнеца. Вот первый нормально переводит, а второй он так старается, но что-то у него не получается. Поэтому нету сегодня перевода. Нету.